So hello everyone, my name is Kunal and I'm your mathematics tutor, and actually we are doing probability, and today is our fifth lecture on probability. So let me recap the things कि हमने क्या क्या चीजें cover कर चुके हैं. So we are actually discussing some event kind of thing. Event को discuss कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला event देखा था complementary event, and इसमें सबसे जो important चीज हमें सीखने को मिला था वो ये मिला था कि प्रोबेबिलिटी किसी काम के होने का प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी उसी काम को ना होने का is when we add it's get the one. Okay, and then we discuss some odds in favor and odds against. We discuss this thing, and after that we discuss compound event. Okay, so it's like A union of B, A intersection of B, these kind of thing we actually discuss. So now in today's class we are gonna discuss some more events. So first will be like mutually exclusive event. It is termed as mutually exclusive event. Okay, so it's termed as mutually exclusive events. So what's it actually mutually exclusive event? So two events are said to be mutually exclusive if happening of one rules out the happening of other. Okay, this is actually basic definitions. Let me write it here. Whatever I said, just have to write it here. So two events are said to be uh, mutually exclusive if happening of one, अगर एक का होना, if happening of one, actually if happening of one rules out happening of other. Okay, and if A and B are, let us suppose if A and B are mutually exclusive event, then mutually exclusive event, then P of A intersection B will be 0. So this is the important thing that you have to keep in mind. Okay, this is actually the important thing that you have to keep in mind. Like देखो ऐसी बात है ना कि जब दो इवेंट्स हो रही हैं एंड एक का होना दूसरे को कंप्लीटली रूल्ड आउट कर देता है. दैट मीन्स कि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं हो. लाइक इफ आई एम ट्राई टू से कि मुझे किंग चाहिए, लाइक आइदर अ रेड किंग और अ ब्लैक क्वीन. इन दोनों इवेंट में कोई रिलेशन ही नहीं है ना. अगर इन दोनों के अगर इंटरसेक्शन देखते हैं तो मुझे रेड का किंग चाहिए एंड ब्लैक की क्वीन चाहिए, कोई रिलेशन नहीं है. बट इफ आई अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे रेड का किंग और ब्लैक का किंग चाहिए, सो देयर इज अ रिलेशन, देयर इज बोथ वी नीड इज किंग. सो यहाँ पे एक का होना दूसरे को कोई अफेक्ट ही नहीं कर रहा. बेसिक लैंग्वेज में ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दैट मीन्स एक का होना दूसरे पे कुछ अफेक्ट ही नहीं क्रिएट कर रहा. लाइक बस यही है कि एक का होना दूसरे पे कोई इफेक्ट ही नहीं क्रिएट कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई इट्स सेइंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज 0. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी या इस स्टेटमेंट को इक्वेशन 1 बोलते हैं. सो वी कैन डिराइव अनदर स्टेटमेंट. वी ऑल नो दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी जो हमने पिछली क्लास में देखा था कंपाउंड इवेंट में, it will be equal to like probability of A plus probability of B minus probability of A intersection of B. So in this case, in mutual exclusive case, mutually exclusive means एक का होना दूसरे को कोई अफेक्ट ही नहीं क्रिएट कर रहा. ठीक है, एक का होना दूसरे को रूल्स आउट कर रहा. दैट्स इट. तो म्यूचुअली exclusive केस में क्या होती है, P intersection of A will be A intersection of B will be 0. So in this case we will counter as probability of A union B is just equal to probability of A plus probability of B. So this is the thing that you have to keep in mind. Okay, so I hope you'll all understand what I'm trying to say. So let's discuss the new event, which is actually known as exhaustive event. Okay, so the new events definition will be like exhaustive event. Exhaustive event. So
ओके, तो इसकी ये क्या होती है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो कि A1 A2 A3 AN है, आर एन इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, सो द A1 यूनियन A2 यूनियन AN विल बी, अगर इक्वल टू सैंपल स्पेस आ जाए ना, तो उसको कह देंगे ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट आई हैव टू राइट द डेफिनेशन। सो टोटल पॉसिबल आउटकम, total possible outcomes, total possible outcome of an experiment, total possible outcome of an experiment, जैसे let us suppose, uh, let us suppose there were an event, ठीक है, मान लो कि वहां पे n events हैं, there were n events like A1 A2 A3, ये सारे events हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा अभी, जस्ट थ्योरी पार्ट में बता दे रहा हूँ। सो AN है इन अ सैंपल स्पेस, तो होनी क्या चाहिए कि इफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 union A4 union dot 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 AN will be equal to sample space, then A1 A2 dot 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 AN are called as exhaustive event. Okay, exhaustive event. So now let me give you an example. Okay, जैसे यहाँ देखो, मान लो कि let's take the example with the coin, a flip coin. ठीक है, तो मैंने एक कॉइन को फ्लिप करा, और मैं अगर बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के आने का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के आने का माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन टेल, जो कि ये तो जीरो है क्योंकि दोनों क्या है, एक का होना दूसरे को रूल आउट कर रहा ना। ये एक्चुअली कौन सा इवेंट है, ये एक्चुअली इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दैट मीन्स हेड का होना टेल को रूल आउट कर रहा, एक साथ दोनों नहीं आ सकता है ना। कभी ऐसा देखो कि क्वाइन को फ्लिप करा और हेड भी आ गया टेल भी आ गया, नहीं होता है। एक का आना दूसरे को रूल्ड आउट कर रहा, दैट मीन्स हेड की आना टेल्स को रूल आउट कर रहा, अगर टेल आता है तो टेल का आना हेड्स को रूल्ड आउट कर रहा। So that's why probability of head intersection tail will be zero, so it will be counted as 1 by 2 plus 1 by 2. That is counted as 1. But if like यहाँ पे तो हमने इसको सॉल्व करा, बट इफ आई गो थ्रू दी सैंपल स्पेस, तो यहाँ पे दो इवेंट है। द फर्स्ट इवेंट लेट अस से A1 will be upcoming of head and A2 will be coming of tail. So A1 union A2 is actually equal to क्या है कि यहाँ पे सैंपल स्पेस ही तो बन रही है हेड एंड टेल, हेड के आने का एंड टेल के आने का, तो ये एक सैंपल स्पेस है ना। अगर एक कॉइन को फ्लिप करोगे, कॉइन इज फ्लिप, तो सैंपल स्पेस क्या आएगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दिस इज आवर सैंपल स्पेस, है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम तो यही है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। And the first event saying this is our event one, and the first event saying ki when we flip the coin, the zone faces head, and the second event saying is ki its tail. So if we taking the union of the first and the second event, if we take the union of the first and the second event, so what we will get? We will get the whole sample space here. Try to understand. If I take the union of the both event, the first event tells that ki the first event is that the zone face is the head one, and the next event, second one is tells that the zone face is the tails one. And if we take the union of the both of event, we will get the sample space. And what's the exhaustive event definition says? If exhaustive events. So it is actually the mutually exclusive as well as because head का आना टेल को रूल आउट कर रहा। इट इज क्लियर फ्रॉम हियर, हेड और टेल दोनों साथ में नहीं आ सकते है ना। हेड की आना टेल को क्या कर रहा, रूल्ड आउट कर रहा। इट्स अ क्लियर केस, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस हो गया, एक का आना दूसरे को रूल्ड आउट कर रहा है। द सेकेंड थिंग इज म्यूचुअली सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट। तो इफ देयर वर n number of events and if we take the union of the each event and if it gives the sample space, so the event A1 A2 AN are called exhaustive event. So in this case, if we flip the coin, so the first thing we have to do is we have to find the probability of heads union tail.
So we just apply the formula, but actually it is the mutually exclusive case. So the union value will be zero. Probability of union value will be zero. Okay, probability of the union value will be zero. Why? Because एक का होना दूसरे को ruled out कर रही है. That's it. दोनों में कुछ भी commons नहीं है. So this will be counted as zero. And then it's, and one more thing. If we take the both events as a union, so we get the whole sample space, which is actually head and tail. So this is counted as exhaustive event also. Okay, so these are the cases of, actually these are the two upcoming event, which will, one is mutually exclusive and other one is exhaustive. So let me take an example to make it clear what is mutually exclusive case and all. So let's take the questions here. So actually our question is, let us take with a dice problem. So a pair of dice has been rolled. Pair of dice has been rolled. So rolled once. Okay. Find that, find that at least one dice shown of the face one. Okay, so we have to find कि कम से कम एक डाइस तो एक, कम से कम एक डाइस पे तो एक आना ही चाहिए. दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू फाइंड. ठीक है, अ पेयर ऑफ डाइस हैज बीन रोल्ड. ओके, अ पेयर ऑफ डाइस हैज बीन रोल्ड and you have to find the probability so that ki one dice, okay, one dice has at least face one. Like if this is our case, so it is acceptable case, and this is also acceptable because एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो maximum दो ही होगा क्योंकि दो डाइस को रोल कर रहे हैं एक बारी. Okay, so let me erase it from here. So okay. Okay, so how can we approach this problem? So let me solve it by two methods. Actually, the first one is by using a complement event. So this is actually our method one. We are using the complementary events, the things. Okay. So what we have to find कि at least one dice पे तो एक आना चाहिए. So what is I'm trying to say? Required probability of A part is equal to 1 minus probability of no one shows वन. किसी पे भी एक नहीं हो. ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज की यहाँ पे 1 2 1 1 होता था, 1 2 होता था, है ना, ऐसा तो जाता था. एंड टोटल 36, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इतने थे, 36 आउटकम्स. बिकॉज स्पेस इज बेस एंड नंबर ऑफ टाइम्स इज पावर, है ना, तो यहाँ पे दो एक्चुअली है. सो इट विल बी काउंटेड एज 2. एंड तो ये और ये रो जो था उसमें एक तो होता ही था. तो नाउ द रेस्ट वन बिकम इज द 5 क्रॉस 5. बिकॉज हमने क्या करा, देखो 6 क्रॉस 6 की जो मैट्रिक्स बनती थी ना अपनी, है ना, 6 क्रॉस 6 की अपनी मैट्रिक्स बन रही होती थी, जहाँ पे हमने क्या करा कि एक रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दिया. बिकॉज फर्स्ट यही आता था, वन जो भी डाइस पे आ रहा था वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे आ रहा था. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आई होप यू विल अटेंड माय द लास्ट लेक्चर, क्योंकि उसमें मैंने ये टेबल वाली फॉर्मेट, ये जो मैट्रिक्स वाली बता रहा हूँ, वो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस करी हुई है. तो if you find any kind of problem, so go through the previous lecture. Okay, so what I'm trying to say here is ki remove the one row and first row and the first column. Okay, so when you remove the first row and the first column from here, so what you will get, a 5 cross 5 matrix. Okay, so there will be simple like 1 by 25 by 36. So what we'll get, you will get 11 by 36 is our required probability. This is just the one liner problem, right? You have nothing to do. What the method 2 will be, एक तो ये टेबल मेथड था जो मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट इवेंट को यूज करके. अदरवाइज डायरेक्टली वो दिख रहा है कि 6 और 5 11 बाई 36 ही आ रहा है ना. 6 इस रो को काउंट कर लो और बाकी ये दो बार काउंट हो जा रहा है, तो इसको एक बार माइनस कर लेंगे, है ना. तो इट विल बी लाइक 11 by 36. नाउ व्हाट इज द मेथड 2 विदाउट यूजिंग टेबल? तो व्हाट इज गिवन, एक्चुअली क्या कह रहा है कि फाइंड दैट एटलीस्ट वन डाइस हैज फेस वन. तो दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके, ठीक है, दोनों में से किसी एक को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं. अब एक पे तो मान ले रहे हैं ना, यहाँ पे एक पे मान ले रहे हैं कि एक पे क्या आ रही है, 2 आ रही है.
मतलब एक आ रहा, एक डाइस पे एक आ रहा। तो दूसरे डाइस पे क्या हुआ कि पांच में से कुछ आ रहा होगा। लाइक वी हैव, देखो एक डाइस पे कितने पॉसिबल आउटकम, या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तो तीन आएगा, या तो चार आएगा, या तो पांच आएगा, या तो छह आएगा, है ना। और मैं मान ले रहा हूँ कि पहले डाइस पे वन है। अब जो दूसरे डाइस होगा उस पे वन नहीं है, उस पे कुछ पांच में से कोई कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 5/5 C1 प्लस, इस बारी मान ले रहा हूँ कि दोनों पे ही एक है, तो 2C2 and divided by 36. Total possible outcome. So if you solve this, what you get? 2 into 5 plus 1 by 36. So it's also counted as 11 by 36. And via both way, we'll get the same answer. So it's verified also. Okay. So actually, this is the thing that we have to do. Now let's take the cases of question on mutual exclusive. Okay. So let's think about that. So question, let me give the heading here. Question based on mutually exclusive, and exhaustive event. I hope this thing will be clear to all of you via this question. Okay. So let me write here the questions. So the questions is, let me write it here. There are three events. There are three events, A, B, and C. One of which must and only one can happen, and only one of which must and only one can happen. The odds are 8 to 3 against A, and 5 to 2 against B. Find the odd against find the odd against find the odd against C actually. So this is the question. First, try to understand this question, what is actually it's saying. So it's saying that there are three events है, जिसमें one of which must and only one can happen. देखो, ये तीन इवेंट में से कोई एक ही इवेंट होगा, बाकी दो इवेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि एक का होना दूसरे को निग्लेक्ट कर रहा। क्योंकि देखो, अब यहाँ पे तीन इवेंट्स है, चीजों को समझो, ए है, बी है एंड सी है। अगर ए इवेंट हो रहा तो बी एंड सी इवेंट नहीं हो रहा, अगर बी इवेंट हो रहा तो सी एंड ए नहीं हो रहा, और अगर सी इवेंट हो रहा तो ए एंड बी नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि एक का होना बाकी दो को रूल्ड आउट कर रहा। इज इट वैलिड पॉइंट और नॉट? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि वन ऑफ विच मस्ट, एक तो होगा ही होगा, एंड ओनली वन कैन हैपन। इन तीनों इवेंट में से ए बी सी में से कोई एक तो होगा ही होगा, लेकिन बस एक ही इवेंट होगा, एक से ज्यादा इवेंट नहीं हो सकता। तो अगर ए का होना बी एंड सी इवेंट को रूल्ड आउट कर रहा, बी इवेंट का होना ए एंड सी इवेंट को रूल्ड आउट कर रहा, एंड सी इवेंट का होना ए एंड बी इवेंट को रूल्ड आउट कर रहा नहीं कर रहा। एंड यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, लाइक हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगेंस्ट, मतलब ऑड्स अगेंस्ट दी हुई है, जो कि एक्चुअली इक्वल होता है कि नंबर ऑफ, वेट अ मिनट, okay, so there is something given like probably the odds against is given for A. So what is actually the odds against? So the odds against is nothing but number of unfavorable outcomes by favorable outcome. So it is actually equal to 8/3. Okay, है ना। So what is the probability of A actually? अगर मैं बात करूँ तो probability of A क्या हो सकता है? So we'll talk it sometimes next time, but first try to understand ki what is the probability of A.
एक्चुअली, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होने का, ए डैश की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/11, बिकॉज देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के नहीं होने का क्या होगा, प्रोबेब नंबर ऑफ अन जो इसके फेवरेबल आउटकम है जो कि 8 है यहाँ पे, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल विच इज 8 + 3 = 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट नहीं होने का वो जो है वो है 8/11। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखते हैं बी इवेंट की दी हुई है 5/2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट के नहीं होने का विल बी इक्वल टू 5/5 + 7। वी आर गोइंग थ्रू दिस, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स फेवर, है ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। सो यू हैव टू कट आउट हो रही है, सो गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें चीजें कवर करी हुई है ना। So here we will get the probability of happening of not happening of event A will be 8/11 and not happening of event will be 5/7. Now the next thing what we have to find, we have to find the odds against of C. So let's try to find the first A union of B union of C. So we all know that this is actually the mutually exclusive case. So right, it's actually the mutually exclusive way and exhaustive also. Why? बिकॉज देखो काम तो कोई एक ही हो रहा है ना, इन तीनों में से काम क्या हो रहा, कोई एक ही हो रहा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 है। ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आ गया होगा, एंड काम कोई एक ही हो रहा है, दैट मीन्स इन तीनों में से किसी के सम का प्रोबेबिलिटी क्या है 1 आएगी। सो दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एक्चुअली 1 है, एंड वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू द दिस थिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। अब देखो बट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ए के ना होने का, सो वी आर यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट थिंग। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ना होने का प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ना होने का एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, 1 से 1 कैंसल, सो विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ना होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ना होने का -1। So when we solve this, what we get? We get, look at here, 5/7 plus 8/11. So 5/7 plus 8/11 -1. So when we solve this, we will get 34/77. So this is the probability of C. And what it's mean? Favorable outcome by total. है ना? So what we have to find? We have to find the odds against C. So what's odds against C? Unfavorable outcome by favorable outcome. So favorable outcome here is 34 and the unfavorable is equal to total minus favorable. So what we will get from here is the total will be actually 77 and minus 30 of 4 and by 30 of 4 which will we get as actually 40 of 3. So 40 of 3 by 34. So this is the actually solutions of odds against of C. यहाँ पे ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कैसे है, जो कि मैंने क्लियर करी है ना। I hope this will be clear to you. Now next move to the some new kinds of event which is actually defined as independent events and dependent event. Okay. So let me give the headings here which is actually defined as independent and dependent event. So here will be counted as, okay, so independent events and dependent event. Independent and the dependent event. Okay, so let me first write its definition, then we will see some problems in it as well. So the two or more event are said to be independent event if happening of one does not affect other event. देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्योंकि देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि इफ हैपनिंग ऑफ वन rules out the happening of other, and independent event की भी definitions है
कि two or more event are said to be independent if happening of one does not affect the others. एक कह रहा है rules out, एक कह रहा है does not affect. तो इन दोनों का कंफ्यूजन भी दूर करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर्स में जो भी कंफ्यूजन आ रही, क्योंकि देखो दोनों की डेफिनेशंस को अगर रीड करोगे ना, लाइक अभी हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा तो उसका क्या था, टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ हैपनिंग ऑफ वन rules out the happening of other. Look at here. Two events are said to be mutually exclusive if happening of one rules out the happening of other. And you know what is the definitions of independent? So let me write it here first, and then I am trying to uh, elaborate it. Okay. So two or more events are said to be independent events if happening of one does not affect other events. If it affect, they will be called as dependent event. बहुत कंफ्यूजन है ना, इट विल बी क्लियर सून. ओके, सो डोंट वरी. जो हमने अभी बातें कही कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि एक का होना दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करे, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है एक का होना दूसरे को रूल आउट कर रहा है. तो फर्स्ट थिंग इसको क्लियर करते हैं. The two or more events are said to be independent event if the happening of one does not affect the happening of other. ठीक है, and अगर affect कर रहा है so it will be called as dependent event. Now let's try to now let me write here the actual confusion. There is a huge, let me write with some different color. Let me write with the red. First I'm gonna erase this. Okay, so there is a huge confusion. There is a huge confusion between mutually exclusive and independent event. So let's deal with it, no? So what is actually its solution is, so look at it. We know that the probability of A intersection B will be 0 here. That means एक का होना दूसरे को ruled out कर रहा था. So let me try to give its proper justification देखते हैं यहाँ पे, है ना. So what the first is कि independent event are always taken from different experiment. Like जो मैंने mutually exclusive में बात बताता हूँ, मैं example लेके समझाता हूँ, then it will be clear. So independent events are always taken from different experiment. ये बहुत important है, note कर लेना इसको. Different experiment. And the second one is यहाँ पे लिखते हैं while mutual exclusive event are from only one experiment. It will be clear soon. दोनों को clear करता हूँ मैं. And the independent event can happen together, but mutual exclusive event can't. Independent events can happen together. Independent events can happen together, but mutually exclusive event can't. Okay, so let's try to figure it out here. What I'm trying to say is कि देखो जो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो डिस्कस करी थी कि हेड एंड टेल वाली, तो हेड का आना टेल का आना ये एक इवेंट था ना, कि हमने क्या करा था, क्वाइन को फ्लिप करा था. तो मैंने कहा था कि हेड का आना टेल के बेसिकली रूल्ड आउट कर रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ हेड रूल आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ टेल, क्योंकि एक साथ हेड और टेल नहीं आ सकता है. यहाँ पे जो इवेंट था वो एक ही इवेंट था, और वो था कि मैंने एक क्वाइन को फ्लिप करा. चीजें क्लियर हो रही नहीं हो रही? मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि इवेंट सेम है, सेम इवेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है. डिफरेंट इवेंट की अगर लेते हैं बात, तो वहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात आती है. हम अगेन सेइंग कि लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल. ये तो पहला एग्जांपल मैंने बताया था कि हेड्स का आना टेल्स को रूल आउट कर रहा, बिकॉज इवेंट मेरा एक ही है, वो है क्वाइन फ्लिप. ठीक है, नाउ लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव.
सो इवेंट विल बी सेम वन सेम, ठीक है। सेम इवेंट में म्यूचुअल, अगर सेम इवेंट में एक का होना दूसरे को रूल्ड आउट कर रहा, सो इट विल बी कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखो, अगर मैंने अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है, अगर एक डाइस को मैंने थ्रो करा, तो इसके दो इवेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि इवन के आने का प्रोबेबिलिटी और ऑड के आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वाई? बिकॉज जो मेरा इवेंट है वो एक ही इवेंट है, सेम इवेंट में एक का होना दूसरे को रूल्ड आउट कर रहा। अगर मैं डाइस को थ्रोन करता हूं और मैं बोल रहा हूं कि जैसे एक आया, ठीक है, लुक एट सब, लाइक लेट अस सपोज दैट कि एक आया, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक वन इज ऑड नंबर, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा। ऑड और इवन डाइस पे साथ नहीं आ सकते, राइट? if you throw a dice, so either it will be an odd number or it will be an even number, है ना, जो भी डाइस पे आएगा। तो ऑड्स का आना इवेंट को रूल्ड आउट कर रहा एंड इवेंट का आना ऑड्स को रूल्ड आउट कर रहा। इट विल बी टेकन अ सिंपल केस, राइट? मेरी बात को समझो, ऑड का आना इवेंट को रूल्ड आउट कर रहा, इवेंट का आना ऑड्स को रूल्ड आउट कर रहा, दैट्स इट। इट्स एक्चुअली एज सिंपल एज यू कैन अंडरस्टैंड। The things is you have to only understand is कि एक ही इवेंट में एक का होना दूसरे को रूल्ड आउट कर रहा है, is counted as mutually exclusive, and independent event will be दो इवेंट में एक का होना दूसरे को काउंटर कर रहा, दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा, एक का होना दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा, it will be counted as independent event. Now let's take the example of independent event. ऐसा देखो कि एग्जाम चल रहा है, ठीक है, एग्जाम हो रही है, लेट मी राइट इन इंग्लिश, ओके। तो एग्जाम हो रही है, यहाँ पे एक स्टूडेंट ए बैठा हुआ है और यहाँ पे एक स्टूडेंट बी बैठा हुआ है, एंड इन दोनों के बीच का जो गैप है वो दो डेस्क छोड़ के, यूजुअली चेयर होती है तो दो चेयर छोड़ के है, ठीक है। नाउ द थिंग्स इज कि ये जो, देखो दोनों को पेपर एक ही मिला, ठीक है, दोनों को पेपर क्या मिला, एक मिला। ये मान लो साइंस, मान लो कि मैथमेटिक्स की पेपर होगी, इसको भी वही पेपर मिला, इसको भी वही पेपर मिला। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि पास होने की प्रोबेबिलिटी ए की एंड पास होने की प्रोबेबिलिटी बी की, देखो ये अपना पेपर खुद लिख रहा, ये अपना पेपर खुद लिख रहा, अब ये तो इसकी जगह जाके लिख नहीं देगा, बिकॉज देयर इज इनविजिलेटर स्टैंडिंग देयर, एंड ना ही ये इसका लिख मतलब जाके लिख सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ बी, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों अपना अपना इवेंट खुद कर रहे हैं। है इवेंट एक ही, एग्जाम हो रही है, बट दोनों अलग अलग पेपर दे रहे हैं, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं। मेरी बात को समझो, यहाँ पे दो इवेंट्स हो रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट में इस क्वेश्चन में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट नंबर, तो इवेंट का आना ऑड को अगेंस्ट कर रहा, बट इसका पास होना और इसके पास होने में कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज दोनों दो इवेंट कर रहे हैं, दोनों अपना अपना पेपर खुद का दे रहे हैं, डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है। चीजों को समझो, यहाँ पे दोनों जो है ना, यहाँ पे अपना अपना पेपर खुद ही दे रहे हैं, दोनों में कोई भी रिलेशंस है ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। दोनों अपना अपना पेपर खुद दे रहे हैं, दोनों में कोई रिलेशंस नहीं है। एक का पास होना फेल होना, जैसे देखो ऐसा समझो, मान लो क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है, 40 में से 38 पास हो गए, दो फेल हो गए, ठीक है। तो क्या जो पास हुआ और जो फेल हुआ, उन दोनों में, लाइक क्या, अगर मेरा पास होना किसी दूसरे पास होने वाले को अफेक्ट कर रहा, नहीं कर रहा, मैं पास हुआ भाई, लाइक सबकी अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स हो रहे ना, मैंने अपना इवेंट खुद लिखा, मैंने अपना पेपर खुद दिया, एंड इफ मैं डिजर्व करता हूँ 80%, मेरे दोस्त डिजर्व करते हैं 90%, सो मेरा 80% लाना एंड मेरे दोस्त का 90% लाना, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। मैं खुद का करके आया हूँ पेपर, वो खुद का अपना पेपर करके आया है,
तो मेरा अगर मान लो मैं फेल हो गया, मेरा दोस्त पास हो गया, कोई रिलेशन से नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा पास होना और मेरे दोस्त का फेल होना, या मेरा फेल होना मेरे दोस्त का पास होना, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कोई एक दूसरे के लिए काम ही नहीं कर रहा, दोनों एक इवेंट है ही नहीं, दोनों दो इवेंट है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट को समझना, बट देयर इज सम वैलिड पॉइंट जो इन दोनों को जस्टिफिकेशन है, जो इन दोनों को डिफरेंट करती है, अलग करती है। द फर्स्ट इज कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो एक ही इवेंट के अंदर होगा। अगर एक ही इवेंट के अंदर एक का होना दूसरे को अगेंस्ट कर रहा, रूल्ड आउट कर रहा, दिस इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे डाइस को था, तो ऑड का होना इवेंट को अगेंस्ट कर रहा था, और इन इन हेड, इन अ फ्लिपिंग कॉइन, हेड का आना टेल को अगेंस्ट कर रहा था। तो इट विल बी काउंटेड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में पेपर हो रही है, दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लेट अस सपोज दैट, तो बच्चे अपना इवेंट खुद कर रहे हैं ना, वहां पे दो लोग पेपर दे रहे हैं, दो अलग अलग लोग पेपर दे रहे हैं, एक का पास होने का दूसरे के पास होने में कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ बी इवेंट। लाइक एक लड़के के पास होना दूसरे लड़के को फेल नहीं करा सकता या पास नहीं करा सकता है। मान लो कि अगर एक स्टूडेंट टॉप किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे सारे स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई फेल भी कर रहा होगा, तो दैट मीन्स आई वांट टू से कि जब कोई एग्जाम हो रहा है तो वहां पे मल्टीपल्स इवेंट हो रहे हैं। अगर 40 बच्चे बैठे तो 40 इवेंट्स हो रहा, 40 इंडिपेंडेंट इवेंट हो रहे हैं। एक का होना दूसरे को रिलेट ही नहीं कर रहा, एक का होना दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन सेट। अगर समझ में नहीं आए सो फिर से एक बार वीडियो देखना, चीजों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट if the happening of one does not affect the other's event, but there should be two different events, है ना। तो ये एक्चुअली चीज है। now let's take some examples and then try to understand some basic formulas in probability जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें देखते हैं ना। this is actually important, so yeah, let me write it here, important formulas। जो भी हमने, देखो इवेंट खत्म हो गया है, इवेंट हमने जितने भी कवर करी है ना अभी तक, जो हमने कल कवर करी थी, है ना, कल भी हमने कवर करा था, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपाउंड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सारी बस इतने ही टाइप का इवेंट्स होता है। सो इवेंट टॉपिक विल बी क्लियर। नाउ इट्स टाइम टू लर्न सम फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सो पहला देखते हैं, जो फर्स्ट है वो है फॉर टू इवेंट्स, फॉर टू इवेंट्स प्रॉब्लम। ओके, मान लो ए एंड बी है। ओके, सो देयर इज द फर्स्ट फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, मतलब सिर्फ ए इवेंट हो रहा, इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, बी का नहीं होने का, है ना। एंड विल बी क्या होता है, एंड विल बी, देखो यहाँ पे समझो, एंड विल बी ट्रीटेड एज इंटरसेक्शन और विल बी टेकन एज यूनियन। तो इसको ध्यान रखना है, ये बेसिक सेट थ्योरी की चीजें है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होने का और बी का नहीं होने का, ठीक है। तो इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने का एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के नहीं होने का। ओके, एंड यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं एक चीज, ओके लेट मी राइट इट हियर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो नाउ ओके, सो ये हो गया। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। जब ए और बी जो होगा ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, एंड अदरवाइज इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नॉट ए। सो इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन बट नॉट ए।
So it will be also equal to probability of B dot probability of A naught for independent, and otherwise probability of B minus probability of A intersection of B. Okay. Now the third thing is probability of only one. What it's mean? So its mean is probability of only A और only B, या तो A का होने का या तो सिर्फ B का होने का. तो और विल बी ट्रीटेड एज यूनियन, मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा है ना. सो व्हाट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ only A plus probability of only B is equal to क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का होने का और B के नहीं होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B के होने का और A के नहीं होने का. तो इट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों का होने का माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन. ये था थर्ड फॉर्मूला. these are you have to keep in mind, actually these are directly used in exams. Okay, the fourth formula is probability of at least वन, कम से कम एक. तो इसका मतलब क्या है कि या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए हो या तो बी हो. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. सिंपल. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ नहीं होने का. सो दैट कैन बी रिटन एज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ नहीं होने, सब कुछ होने का. वी कैन राइट इन टू दिस फॉर्म, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ना ए का होने का ना बी का होने का. सो ये था दो इवेंट के लिए फाइव फाइव फॉर्मूलाज. ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा, 4 and the 5. Now let's take to the for 3 event formulas for 3 events. Let us suppose A, B, and C. So these were our 3 events. So actually 3 events के लिए क्या करना है कि we are not going into formulas. We are actually using the actual concept. So let me first make its Venn diagram. So it will be actually equal to something like that. A, B. फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस वेन डायग्राम से चीजें क्लियर हो जाएंगे. ये एक्चुअली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है. मैं इंडिपेंडेंट वाली नहीं ले रहा, इंडिपेंडेंट वाली केस स्पेशल वहां पे लिख दी गई है. ठीक है, सो इट विल बी लाइक ये जो है ना, ये पार्ट दिखा रहा बस ओनली ए, बस ए हो रहा, ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं हो रहा, बी भी नहीं हो रहा. सो इट विल बी टेकन एज दिस. Now the formula for the 3 events. So first make me the Venn diagram of 3 events. So it will be something like ऐसा होगा ना. ठीक है, एंड इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही यूनिक है. We are not going through the formulas, we are actually solving some equations. Okay, like if I take this region, so first I have to name them. Okay, so let us suppose this is actually A event, this is B event, and this is C event. So what is actually representing the only A? Only this region. This region actually represent the only A part. Okay, so now let me write the formula, but remember that we are not gonna use the formula as such. We are using the concept जो कि अपन next class में discuss कर रहे होंगे. But first me write here the formulas. Okay, so the first formula is, because जरूरी होता है क्योंकि वो सारे सेट्स में आपने पढ़ रखे होंगे. A intersection B intersection C will be like probability of A, B, C occurs together. So this is actually equal to क्या होगा, n of A intersection B intersection C divided by total number of sample. फिर वही दूसरा है कि probability of A union B union C is actually equal to probability of at least one. फिर आता है probability of only A. इट इज एक्चुअली इक्वल टू ए का होना लेकिन बी और सी के नहीं होने के इक्वल है. सो इसको लिख देता हूँ, बट वी आर हम अगेन सेइंग कि फॉर 3 के लिए अपन ये सारे फॉर्मूले ध्यान नहीं रखने होंगे, बट वी आर यूजिंग दी शॉर्टकट्स, सो जिससे इजीली सॉल्व हो जाएगा. इतना ये लिखना नहीं पड़ेगा. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
intersection B intersection C. Okay. A intersection B intersection C. The next formula is similarly B के लिए भी हो जाएगा, only B के लिए. I'm just going to the PB none. So none में होगा क्या? प्रोबेबिलिटी ना A का होने का, ना B का होने का, ना C का होने का. So it will be actually equal to 1 minus सब कुछ होने का. A union B union C. We are using the complementary case here. The fifth one is probability of A union B union C. It is actually equal to probability of A plus probability of B plus probability of C and minus probability of A intersection of B minus probability of B intersection of C minus probability of A intersection of C plus probability of A intersection of B intersection of C. ये सारे सेट में आपने पढ़ रखे होंगे. And the last one which is actually important, probability of exactly one. मतलब तीनों में से कोई एक, ठीक है. दैट मीन्स या तो A होगा तो B और C नहीं होगा, या फिर अगर A नहीं होगा, अगर B होगा तो A और C नहीं होगा, या फिर अगर A हुआ, A भी नहीं हुआ, B भी नहीं हुआ तो C तो पक्का ही हो. सो इसकी जो आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C minus 2 into probability of A intersection of B minus 2 into probability of B intersection of C minus 2 into probability of A intersection of C plus 3 into probability of A intersection of B intersection of C. तो ये सारे इतने सारे देखो कितने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं. सो वी आर नॉट गोना यूज द फॉर्मूला एज सच. सो ये था 2 इवेंट्स के फॉर्मूले, ये थे 3 इवेंट्स के फॉर्मूले. So actually we are not gonna use that. We are not gonna using such formulas for solving probability questions of 3 events and 2 events as well. ये बस boards वगैरह में है तो उसमें use कर लेना 2 events as well. We are actually using Venn diagram. We are actually using Venn diagram to solve problem. ठीक है, Venn diagram के हेल्प से अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे. सो इसकी हेल्प से यही होता है वेन डायग्राम. आपने स्टेट थ्योरी में पढ़ा होगा, तो इसकी हेल्प से जो है ना प्रोबेबिलिटी की सारी क्वेश्चंस कर रहे होंगे. ओके, सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोना डिस्कस हाउ टू सॉल्व problem based on 3 events with the help of Venn diagram. Remember that these formulas are just useful in boards kind of thing, जहाँ पे आपको ये पूछ लिया जाएगा कि आपको फॉर्मूले सही करने होंगे. बिकॉज आपको अगर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ रही है तो आपको उसके कॉन्सेप्ट यूज करने हैं ना, ठीक है. बट इजिली वेन डायग्राम्स हो जाता है. सो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. अगर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन गो थ्रू देयर. ओके, फॉर्मूलाज ध्यान में रखने होंगे क्योंकि सेट थ्योरी में भी आता है 11th वगैरह में, तो वो इट विल बी ध्यान होते हैं. बट ओके, दैट्स इट. So that's all for today. So in next class we are going to discuss how to solve the problem with the help of Venn diagram. Okay, thank you.